Historiography development in the West is a significant topic covered in the Class X Maharashtra State Board History syllabus. To provide knowledge and explanations on this subject, Ignited Minds Tutorials has uploaded a video that delves into the various aspects of historiography development in the Western world. In this video, students will discover how historiography has evolved over time in the West, examining the different schools of thought and approaches to history writing. They will explore the contributions of renowned historians like Foucault, René Descartes, Voltaire, Simone de Beauvoir, Karl Marx, etc., and the impact of socio-political changes on historical interpretations. The video covers the emergence of historical writing in ancient Greece, highlighting the works of influential historians like Herodotus. It then explores the development of Christian historiography during the Middle Ages, emphasizing the influence of religious beliefs and the Church. Moving forward, students will learn about the emergence of secular historiography during the Renaissance and the Enlightenment period. Examining the works of renowned scholars such as Voltaire and Descartes, the video also discusses the impact of scientific advancements and new methodologies on historical research during this era. Lastly, the video provides insights into the modern approach to historiography, considering postmodern critiques and the emphasis on multiple perspectives and marginalized voices. Overall, this video aims to provide a comprehensive understanding of historiography development in the West, enabling students to grasp the evolution of historical interpretations in different periods and the factors. Okay, बच्चा पार्टी we will start with historiography development in the West. ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर है और कैसे हिस्टोरियोग्राफी बेसिकली होता क्या है. व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी? एनी आइडिया व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी? हाँ, क्या क्या पास्ट के इवेंट नहीं. हिस्टोरियोग्राफी मतलब यहाँ पे कैसे, जैसे अगर आप बोलते हो कैलीग्राफी, कैलीग्राफी मतलब क्या होता है? राइटिंग. ठीक है, राइटिंग को कैलीग्राफी बोलते हैं, राइटिंग का स्टाइल. तो इसी तरह से हिस्ट्री को प्रेजेंट करने के स्टाइल को अपन क्या बोलते हैं? हिस्टोरियोग्राफी. ठीक है, हिस्ट्री को इधर इधर उधर टाइम पास इधर. ठीक है, सो हिस्टोरियोग्राफी जैसे कैलीग्राफी होती है राइटिंग को प्रेजेंट करने का तरीका, अलग अलग कैलीग्राफिक स्टाइल्स होते हैं. वैसे हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है? हिस्टोरियोग्राफी इज बेसिकली द वे और आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग हिस्ट्री. आप दोनों साथ में नहीं बैठ सकते, बैठिए ना, उनको आगे आने दीजिए जरा फटाफट. ये सब टाइम पास कर रहे हैं वहां पे, आप इधर बैठिए, एक एक सीट आगे आइए. क्यों पीछे बैठे सब लोग? जल्दी जल्दी जल्दी, कहीं भी एडजस्ट होइए जल्दी. सब अलग अलग एक एक सीट लेके बैठे हुए हैं भाई साहब, क्यों? ठीक है, सो हिस्टोरियोग्राफी इज व्हाट पीपल, हम हिस्टोरियोग्राफी इज द ओके. तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, देखो इंट्रोडक्शन है, ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी है, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी, नोटेबल स्कॉलर्स जो हैं, ठीक है, जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है. ठीक है, नाउ इंट्रोडक्शन. Historical research, writing and studies are carried out with an objective of understanding the chronology of past events and their interconnections. Okay, अभी ये chronology क्या होती है भाई साहब? What is chronology? हाँ, क्या बोला? Sequence, correct. ठीक है, correct, sequence. Chronology मतलब क्या होती है भाई साहब? Sequence. ठीक है, chronology is basically sequence. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पहले अपन पढ़ेंगे 1984 में क्या हुआ था, ठीक है, फिर अपन पढ़ेंगे भाई साहब 1886 में क्या हुआ था. नो, दैट इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री. थैंक यू. ठीक है, तो हिस्ट्री बेसिकली क्या हो जाएगा भाई साहब? सीक्वेंस, प्रॉपर सीक्वेंस में हिस्टोरिकल रिसर्च, राइटिंग एंड स्टडीज आर कैरिड आउट विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड देयर इंटरकनेक्शन. पास्ट इवेंट्स को समझना और उनके इंटरकनेक्शन को समझना. ठीक है, जैसे समझो अगर मैं बोलूं कि भाई साहब गांधी व्हेन ही केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया, ठीक है, तो क्या आते ही उन्होंने सत्याग्रह लॉन्च किया और सब लोग उनके साथ हो गए? नहीं. ठीक है, तो देयर आर लॉट ऑफ इवेंट्स दैट हैपेंड. ठीक है, बहुत सारे पैरेलल इवेंट्स हुए. तो पहले उन्होंने भाई साहब एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू किया, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू किया, फिर जाकर लोगों का कॉज लेना चालू किया, तब जाकर भाई साहब उन्होंने, तो पहले उन्होंने वो बिहार में गए, चंपारण में गए, वहां पे उन्होंने किसानों का कॉज लिया. फिर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट बोल के गुजरात में है, वहां पे उन्होंने भाई साहब अगेन किसानों का कॉज लिया, फिर मिल वर्कर्स का कॉज लिया. तो इस तरह से धीरे धीरे
लोगों के साथ वो जुड़ते गए। आप आएंगे और एकाएक बोलेंगे चलो भाई साहब अपन सत्याग्रह करते हैं, अपन भाई साहब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ते हैं, कोई आपकी सुनेगा नहीं। आप जब तक लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक लोग आपसे जुड़ेंगे नहीं। तो एक सीक्वेंस होता है हर चीज का, ठीक है। तो ये इंटरकनेक्शंस हैं, ठीक है, कैसे भाई साहब चीजें या घटनाएं इंटरकनेक्टेड हैं, हाउ आर दे इंटरकनेक्टेड, ठीक है, ओके। सो हाउ आर दीज थिंग्स इंटरकनेक्टेड। तो क्रोनोलॉजी क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। जैसे जैसे भाई साहब घटनाएं घटी हैं उनको प्रॉपर डेट्स में प्रस्तुत करना, इसको अपन बोलते हैं क्रोनोलॉजी, ठीक है। सो द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, जैसे जैसे घटे हैं, ठीक है, जैसे जैसे घटनाएं घटी हैं वैसे वैसे उनको अरेंज करना, इसको अपन बोलते हैं क्रोनोलॉजी, ओके। मेथड्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स आर यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च। तो आपका एक होता है भाई साहब आर्कियोलॉजी। हम यहाँ पे भाई साहब आर्कियोलॉजी मतलब क्या होता है कि हम चीजों को खोद कर निकालते हैं, ठीक है। सो इसमें हम भाई साहब पुरातत्व चीजों को और सही तरीके से करना पड़ता है इसको, ठीक है। आर्कियोलॉजी में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, दे आर वेरी केयरफुल अबाउट थिंग्स, ठीक है। तो आर्कियोलॉजी, मेथड्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन, आर्कियोलॉजी, आर्काइवल साइंस, ठीक है। देन वी हैव मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। आर्काइवल साइंस मतलब क्या होता है वैसा, व्हाट इज आर्काइवल साइंस? जो आपका जितनी भी चीजें अभी तक कलेक्ट हुई हैं किसी साइट से किसी ईयर के लिए या किसी एज के लिए, उसको कलेक्शन करके रखा जाता है। जैसे आपका लाइब्रेरी होता है वैसा ही आर्काइवल साइंस होता है। और क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी मतलब क्या होता है? देखो ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं, ताल पत्ते पे लिखे गए हैं, पुराने जमाने के पेपर पे लिखे गए हैं कैसे भी करके, ठीक है। तो इन चीजों को हाथ से लिखा गया है और ये है आपका मैन्युस्क्रिप्ट। दीज आर बेसिकली मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, ठीक है। तो ये अलग अलग। एपिग्राफी देखो, एपिग्राफी जैसे स्टोन्स में आपने कार्वेशंस किए हैं, एपिग्राफी मतलब ये जो लेटर्स हैं इनको समझना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एपिग्राफी। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस दैट हैव बीन मेड इन स्टोन्स और मे बी इन टेंपल रॉक्स, ठीक है, पुरातन रॉक्स पे जो इंस्क्रिप्शंस हैं आपके उनको, ठीक है, ये आपका एपिग्राफी है। देन एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, किस तरह से लेटर्स लिखे जाते हैं, ठीक है। लिंग्विस्टिक्स मतलब भाषा, ठीक है, ऑल दीज आर बेसिकली, ठीक है। देन वी हैव न्यूमिज्मैटिक्स, न्यूमिज्मैटिक मतलब स्टडी ऑफ कॉइन्स, ठीक है। ये सारे आपके अलग अलग तरीके हैं। मेथड्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स आर यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च। आप जो हिस्टोरिकल रिसर्च करते हो ये सारे अलग अलग मेथड्स हैं। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी मतलब खोद कर चीजों को निकालना, ठीक है। कोई भाई साहब पैलेस है, कोई लाश है, कभी कभी हम बेसिकली लाशों की भी स्टडी करते हैं, कैसे बॉडी के स्ट्रक्चर्स होते थे, ठीक है। जैसे आप अगर देखोगे इजिप्ट में आपके जितने भी ममीज हैं उनको स्टडी होती है। ममीज मतलब समझते हो राइट, वो लाशें अभी बहुत सालों पुरानी हैं लेकिन वैसे की वैसे ही पड़ी हुई है, उनमें कोई भी डेट्यूरेशन नहीं हुआ है, कोई भी बायोलॉजिकल आपका डेट्यूरेशन उसमें नहीं हुआ है। उसके अलग अलग रीजंस हैं साइंटिफिक, लेकिन उनकी स्टडी करना, क्योंकि उस टाइम के लोगों के बोन्स, हाइट या स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होता था, अभी कैसे है, ये सब स्टडी करना, ठीक है। आर्काइवल साइंस, आर्काइवल साइंस मतलब जितनी भी चीजें एक पर्टिकुलर जगह से खोद कर निकाली गई हैं या जितना भी रिसर्च हुआ है उसको पूरा पूरा एक जगह पे रखना, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी अगेन व्हाट इज इट? मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं हम, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जो पुरातन जमाने में किसी राइटर ने अपने हाथ से लिखा होगा उसको कलेक्ट करना और उसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। एपिग्राफी स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, स्टोन्स पे, ठीक है, मंदिरों के दीवारों पे, ठीक है, इन सब जगहों पे जो काट कर, पत्थरों को काट कर जो लिखा गया है उसको अपन इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, किस तरह से लेटर्स लिखे जाते थे, ठीक है। तो हर एक की राइटिंग अलग अलग होती है, लेटर का स्टाइल क्या होता था, ठीक है। व्हाट एवर लेटर्स और व्हाट एवर अल्फाबेट्स वेर बीइंग यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, उनका स्टाइल क्या होता था। लिंग्विस्टिक्स मतलब क्या भाषा का प्रयोग होता था, ठीक है। न्यूमिज्मैटिक मतलब स्टडी ऑफ कॉइन्स, आपके कॉइन्स से हमको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है, कौन उस टाइम पे राजा था, ठीक है, किस तरीके का कॉइन था, किस मेटल से कॉइन बना हुआ था, ठीक है, और उस पे भाई साहब क्या क्या एम्ब्लेम्स था, क्या क्या ईयर, सब कुछ लिखा रहता है। देखो आपके आज की तारीख का एक कॉइन लोगे तो उसमें बहुत कुछ लिखा रहता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है। तो हमारा अभी रूलर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। पहले के जमाने में राजा लोग रूलर होते थे तो उनके नाम पे कॉइन्स बनते हैं। तो न्यूमिज्मैटिक इज बेसिकली स्टडी ऑफ कॉइन्स। इस तरह से हम अलग अलग तरीके से, जीनोलॉजी स्टडी ऑफ लीनेज, ठीक है। अभी जैसे देखो अगर हम बोलें कि बाबर का बेटा अकबर, अकबर का बेटा हुमायूं, ऐसे ऐसे, ठीक है, उसका बेटा भाई साहब शाहजहां, ऐसे करते करते हम आते हैं औरंगजेब तक। तो इसको हम बोलते हैं भाई साहब फैमिली ट्री, ठीक है, इट इज बेसिकली फैमिली ट्री, ठीक है। सो इस तरह से कैसे कैसे धीरे धीरे रूलर्स हुए।
सो दिस इज नोन एज स्टडी ऑफ लीनिएज, ठीक है। किसी डायनेस्टी का, जैसे भाई साहब हमारे इंडिया में बहुत सारे डायनेस्टीज हुए, गुप्ता डायनेस्टी हुआ है, पल्लवा डायनेस्टी हुआ है, चोलास हुए हैं, ठीक है। ये सब हिंदू डायनेस्टीज थे, बहुत बड़े बड़े हिंदू डायनेस्टीज थे, अशोका, ठीक है। तो ये सारे आपके अलग अलग एम्पायर्स थे। उसके बाद मुगल डायनेस्टीज हुए हैं। तो इन तरह के डायनेस्टीज में क्या लीनिएज था, किसके बाद कौन राजा बना, उस टाइम पे कैसे राज्य चला, ठीक है, उस टाइम पे क्या आर्थिक व्यवस्था थी या सामाजिक व्यवस्था क्या क्या थी, इस सभी का स्टडी, दैट इज स्टडी ऑफ लीनिएज, कौन कहां से आ रहा है, ठीक है। ओके, हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, तो राइटिंग अ हिस्टोरिकल नैरेटिव क्या क्या है भाई साहब आपका, अगर आप किसी हिस्टोरिकल नैरेटिव को लिखते हैं, हिस्टोरिकल नैरेटिव मतलब क्या होता है, एक कोई जो घटना घटी है उसके बारे में नरेशन, ठीक है, उसके बारे में भाई साहब नैरेटिव, राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नैरेटिव, ठीक है। किसी भी नैरेटिव को लिखना मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप एक घटना को, आप तो थे नहीं उस टाइम पे, ना ही कोई कैमरा था, ऐसा नहीं है कि कोई मैच चल रहा था उसकी रिकॉर्डिंग है और उसको अपन प्रस्तुत कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। दिस इवेंट हैज हैपेंड विदाउट वी बीइंग देयर और द हिस्टोरियन हिमसेल्फ बीइंग देयर, ठीक है। दिस हैज हैपेंड इन द पास्ट, अभी जो हमको पुरातत्व सामग्री मिले हैं, ठीक है, अवशेष मिले हैं, उसके ऊपर हम एक नरेशन लिख रहे हैं कि ये हुआ था, ठीक है। तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, उधर दीवार में क्या हो रहा है भाई साहब, इंस्क्रिप्शन दिख रहे हैं तुमको, हाँ जी, तब से निहारे जा रहे हो भाई साहब दीवारों को, ठीक है। सो हम यहाँ पे नैरेटिव लिख रहे हैं। व्हाट इज द नैरेटिव, नैरेटिव मतलब एक गाथा लिख रहे हैं हम, ठीक है। समझ लो अगर हमने महाराज शिवाजी के बारे में कुछ लिखा तो कहाँ से लिख रहे हैं, क्या क्या हमको मिला है, क्या क्या मतलब लोकगीत में से कुछ हमको मिलेगा, ये जो पवाड़ा होता है उसमें से हमको कुछ मिलता है, फिर अपन समझ लो उनके जो भी फोर्ट्स हैं वहां पर गए होंगे और वहां पे कुछ मिला है, कुछ लिखी हुई चीजें मिली हुई हैं, ठीक है, और कुछ कॉइन्स मिले हैं। ऐसे सारी चीजों को कंपाइल करके हम बता सकते हैं कि उन्होंने इन इन जगहों पर आक्रमण किया था, उन्होंने इन इन जंगों को जीता था, ऐसा हम बता सकते हैं, है ना। सो दैट इज कॉल्ड पाइलिंग ऑफ अ नैरेटिव, ठीक है। तो एलिमिनेटिंग, एग्जामिनिंग रेलेवेंट रेफरेंसेस ऑफ द अवेलेबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट रेफरेंसेस। अभी समझ लो शिवाजी महाराज के टाइम पे जब मराठा किंगडम एक्सपैंड हो रहा था, ठीक है, तो उनका जिन जिन के साथ बैर था, समझ लीजिए आपके मुगल साम्राज्य के साथ, या उस टाइम पे जिनके साथ लड़ाई लड़ी गई उनके साथ अपन कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि उस टाइम पे यूएस में क्या हो रहा था तो क्या उससे इसका कोई डायरेक्ट ताल्लुकात रहेगा, हो सकता है उस टाइम पे पैरेलली यूएस में भी कुछ चल रहा हो, लेकिन शिवाजी महाराज जो थे वो इंडिया में थे और इंडिया में मराठा किंगडम एक्सपैंड हो रहा था, ठीक है। तो उसका इसके साथ कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, दोनों समकालिक हैं, समकालिक मतलब सेम टाइम, ठीक है, सेम टाइम में हो रहे हैं। यूएस में कोई घटना घट रही है, इंग्लैंड में कोई घटना घट रही है, लेकिन उस टाइम पर शिवाजी के साथ या शिवाजी महाराज के मराठा किंगडम के एक्सपेंशन के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए हम बोलते हैं रेलेवेंट रेफरेंस, ठीक है। हम किस चीज के साथ रेफर कर रहे हैं, समकालिक घटना है लेकिन क्या हम रेफरेंस सही लगा पा रहे हैं, तो इसीलिए हम बोलते हैं एग्जामिनिंग रेलेवेंट रेफरेंस, ठीक है, ऑफ द अवेलेबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। जो भी हिस्टोरिकल रेफरेंस, अभी समझ लो हमको मालूम चला कि अमेरिका में उस टाइम पे ये हुआ था, लेकिन उसके साथ यहाँ पे इंडिया में क्या शिवाजी महाराज के मराठा किंगडम के एक्सपेंशन का कोई भी ताल्लुकात है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसको हम हिस्ट्री में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर है, ओके। क्रिटिकली एग्जामिनिंग ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अभी क्रिटिकल एग्जामिनेशन मतलब क्या होता है, ठीक है, जितने भी आपको सोर्सेज मिले, कभी कभी भाई साहब लोग सोर्सेज बना देते हैं, ठीक है, तो किसने लिखा है, क्या उनके टाइम पे कोई राइटर था जिसने लिखा है या ऐसे ही मनगढ़ंत किसी ने लिख दिया है, ठीक है। ये च्युइंगम चबाना बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, नेक्स्ट टाइम थ्रो इट आउट, ठीक है। आप किसी फील्ड में नहीं हैं, कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है ये। क्रिटिकली एग्जामिनिंग ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, आपको जो भी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री मिले हैं, ठीक है, उसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, ठीक है, हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है भाई साहब, व्हाट इज फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, अच्छा ये हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना आप जो भी कर रहे हो वो सिर्फ कड़ियों को जोड़ रहे हो, हाँ इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद अब आपकी कहानी बना रहे हो। हाइपोथेसिस ही है। हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है, हाँ जी अमिताभ बच्चन इंटरव्यू दे रहे हैं, अमिताभ बच्चन। व्हाट इज हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मतलब आपके पास कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, ठीक है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई है इस चीज की, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप कड़ियों को जोड़ रहे हो, जो जो प्रूफ आपको मिला है उन प्रूफ्स को जोड़ते हुए आपको एक कड़ी मिल रही है या एक नैरेटिव मिल रहा है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस, ठीक है।
हाइपोथेसिस मतलब काल्पनिक, काल्पनिक नहीं है, पूरा पूरा काल्पनिक नहीं है, आपको जो भी तत्व मिले हैं उनको जोड़कर आपने इसको बनाया है, हाँ, लेकिन पूरा पूरा रिकॉर्डिंग भी नहीं है, ठीक है, तो इसको अपन हाइपोथेसिस बोलते हैं। collecting historical information highlighting the process that led to the historical transitions, carrying out comparative analysis, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई साहब इंडिया में नेशनलिज्म जब स्टार्ट हुआ, मतलब गांधी जब आए और धीरे धीरे उन्होंने पहले लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश की, उसके बाद सत्याग्रह में लोग उनके साथ जुड़े, तो ये प्रॉपर तरीका है, ठीक है, नेशनलिज्म को समझने का। कलेक्टिंग हाईलाइटिंग द प्रोसेस दैट लेड टू हिस्टोरिकल ट्रांजिशंस, कैसे हिस्टोरिकल ट्रांजिशंस हुए, कैसे लोग मतलब जो अपनी आइडेंटिटी गांव के साथ थी उनकी, मतलब मेरा गांव ही सब कुछ है, देश क्या होता है मालूम ही नहीं था। आज की तारीख में अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक इंडियन हैं तो आप बड़ी आसानी से इंडियन शब्द से कनेक्ट कर सकते हैं या भारतीय शब्द से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है भारतवर्ष क्या है। लेकिन एक टाइम था जब मतलब ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम देयर वाज नो इंडिया, इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट था, ठीक है, लेकिन एज अ कंट्री वो यूनाइटेड नहीं था, गुटों में बटा हुआ था। हम लोगों की आइडेंटिटी उनके गांव से होती थी, उनका देश से कोई जुड़ाव नहीं था, ठीक है, तो इस चीज को उस टाइम पे समझना मुश्किल है, ठीक है। तो कैसे धीरे धीरे ये हिस्टोरिकल ट्रांजिशन हुआ, कलेक्टिव आइडेंटिटी हुई, ठीक है, जब बहुत सारे लीडर्स सामने आए और उन्होंने नेशनल मूवमेंट का बागडोर संभाला, तब जाकर लोग अपने देश से जुड़ने लगे और उनको समझ में आया कि उनके देश में कोई और प्रांत के लोग हैं जो उनको रूल कर रहे हैं और उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। तब जाकर ये ट्रांजिशन हुआ, बदलाव आया, सोच में बदलाव आई, ठीक है। कैरिंग आउट कंपैरेटिव एनालिसिस, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंसेस रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस ऑफ द गिवन हिस्टोरिकल इवेंट्स, ठीक है, तो आपके जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं एंड आल्सो वेरियस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स यूज्ड इन हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, ठीक है। तो टाइम किस टाइम पे हुआ है, स्पेस क्या था उस टाइम पे, मतलब उस टाइम पे सोशल सेटअप क्या था, आर्थिक व्यवस्था क्या थी, लोगों की सोच क्या थी, सामाजिक सेटअप क्या था, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ वुमेन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, किसी काल के बारे में अगर हम सोचने की या उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वेरियस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स यूज्ड इन हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, तो कैसे आपने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स लगाए हैं एक नैरेटिव को बनाने के लिए, एक जो गाथा आपने लिखी है या हिस्टोरिकल जो आपने नैरेटिव पाइल अप किया है उसमें कौन कौन से हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड आपने अपनाए हैं, ठीक है। क्या आपने एक्चुअली खोद कर चीजों को निकाला है, या आपको मैन्युस्क्रिप्ट से मिला है, या आपको कॉइन से मिला है, कहां से क्या नॉलेज आपको उस कालीन दौर पे मिला हुआ है, ठीक है। फॉर्मुलेटिंग रेलेवेंट क्वेश्चंस इन व्यू ऑफ हिस्टोरिकल प्रेफरेंसेस, रेलेवेंट क्वेश्चंस जो आपके मतलब आपने देखा रहेगा बहुत सारे स्टूडेंट्स है बस क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, उनका मतलब सब्जेक्ट से भी कोई ताल्लुकात नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे इररिलेवेंट क्वेश्चंस नहीं, रेलेवेंट क्वेश्चंस, अच्छा ये हुआ था तो ये क्यों हुआ रहेगा, ठीक है, अगर कोई हिस्ट्री में कोई घटना घटी रहेगी तो क्यों घटी है, व्हाट कुड बी द रीजन, उसके बाद हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो फॉर्मुलेटिंग रेलेवेंट क्वेश्चंस, रेलेवेंट मतलब जो उस टाइम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, उस टाइम से कोरिलेटेड क्वेश्चंस हो और जिनका आंसर ढूंढते हुए आप हिस्टोरिकल नैरेटिव को समझ पाए, ठीक है। निधि इसको बंद कर दोगी क्या, वो जो काला वाला सूझे ना, हाँ, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। Tradition of historiography, critical examination of historical resources and writing the historical narrative. The historian cannot include every past event in the narrative. अभी समझ लो भाई साहब महाराज शिवाजी के टाइम पे मराठा किंगडम था, ठीक है, आप क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, उन्होंने किन जगहों को आक्रमण करके अपने मराठा एम्पायर में इंक्लूड किया, ये इंक्लूड कर सकते हैं। उस टाइम पे आर्थिक सामाजिक व्यवस्था क्या थी, उनके किंगडम में कैसे चलता था, ठीक है, ये सब आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सारे पास्ट इवेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं क्या आप, अभी समझ लो एक दिन उनका, समझ लो शिवाजी महाराज का एक दिन, उसमें वो कितने ही लोगों से मिले होंगे, कितने ही डिसीजंस उन्होंने लिए होंगे, क्या सब कुछ आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने नैरेटिव में, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो नैरेटिव में आपके पास अगर प्रूफ भी हो तो भी आप सब कुछ इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है, उस नैरेटिव में सारा कुछ इंक्लूड नहीं हो सकता, किसको मतलब कौन इतने डिग जाएगा, ठीक है। तो द हिस्टोरियन कैन नॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन हिज नैरेटिव, ठीक है। राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नैरेटिव वाज नॉट प्रेवलेंट इन द एंशिएंट सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड। तो पहले के जमाने में भाई साहब देखो, पहले के जमाने में लोग तो मतलब शिक्षित पहली बात थे नहीं,
धीरे धीरे जब शिक्षा का प्रणाली फैला तो लोगों को बहुत देर में समझने आया कि हिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि कल हम भी इतिहास बन जाएंगे, कल हम भी नहीं रहेंगे। तो हमारी जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, हमारा जो सामाजिक सेटअप है, ये भी एक स्टडी का विषय होगा, ठीक है। दिस विल ऑल्सो बिकम अ टॉपिक ऑफ स्टडी फॉर फ्यूचर जनरेशंस। तो इसीलिए लोग पहले के ज़माने में हिस्ट्री को फॉलो ही नहीं करते थे। हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट डिडंट इन्वॉल्व एट ऑल, ठीक है, ओके। Ancient societies used means like cave paintings, storytelling, singing songs and ballads for passing on the stories of their life to the next generation. तो ऐसे देखो आपके केव पेंटिंग्स होते थे, ठीक है। और फिर भाई साहब बैलेड्स मतलब समझते हैं, व्हाट आर बैलेड्स मतलब जैसे लोक गीत होते हैं, ठीक है, वो, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन में ऐसे सब जाते थे। स्टोरी टेलिंग, ठीक है, दादा परदादाओं से एक ही कहानी चली आ रही है, तो शायद ये घटना घटी रही होगी या नहीं घटी रही होगी, लेकिन इस तरह से आपका एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन इंफॉर्मेशन पास आउट होता था। दिस इज हाउ इंफॉर्मेशन यूज्ड टू पास आउट, ठीक है। दीज ट्रेडिशनल मीन्स आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इन द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है, ओके। चलिए वैसा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। डैश इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, संजम, डैश इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, लिंग्विस्टिक्स, एपिग्राफी, न्यूमिज्मेटिक्स, जीनोलॉजी। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस कौन सा जाएगा? एपी, ओके, एपिग्राफी, यही ध्यान है भाई साहब, बहुत बढ़िया। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव मतलब क्या होता है भाई साहब? आपका क्रिटिकली आप लिख रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि देखो कोई ऐसा राजा नहीं हो सकता जिसके राज्य में कुछ गलत ना हुआ हो, पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। तो क्या जितनी भी गलत घटनाएं होंगी, अगर आप किसी राजा के बारे में लिख रहे हो, लेट से आप उस राजा के भक्त हो या उस राजा को बहुत मानते हो, तो आप अगर एक अच्छे हिस्टोरियन हैं तो जितनी भी नेगेटिव घटनाएं घटी हैं उसको भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। दैट ऑल्सो हैज टू बी रिटन, नॉट विद द पर्पस कि राजा को डिफेम करें, लेकिन विद द पर्पस ये होना ही है। हर पॉजिटिव घटना के साथ साथ नेगेटिव घटना भाई साहब होती है, ठीक है। तो ऐसा इस क्रिटिकल, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव। मतलब आप जब भी कोई हिस्टोरिकल नैरेटिव प्रस्तुत करते हैं उसमें तमाम घटनाओं को इंक्लूड करते हैं। यू एक्चुअली इंक्लूड ऑल द थिंग्स दैट हैव हैपेंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड हिस्टोरियोग्राफी। कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप। मेथड्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स यूज्ड इन हिस्टोरिकल रिसर्च क्या क्या है भाई साहब? आर्कियोलॉजी है, लिंग्विस्टिक्स है, एपिग्राफी है, जीनोलॉजी है, न्यूमिज्मेटिक्स है, स्टडी ऑफ कॉइन्स, और क्या हो सकता है बोलो? हाँ, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी भाई साहब, मैन्युस्क्रिप्ट्स की स्टडी, और क्या हो सकता है? और क्या? जीनोलॉजी तो हो गया, आर्काइवल साइंस हो गया, आर्कियोलॉजी हो गया, ठीक है। ऑल दीज आर डिफरेंट थिंग्स। मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, न्यूमिज्मेटिक्स, आर्काइवल साइंस, ये जब जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है, ओके। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी आज की तारीख में, तो हिस्ट्री बेसिकली क्या है भाई साहब? एक ग्रीक वर्ड है। हिस्ट्री इज अ ग्रीक वर्ड, ठीक है। व्हाट डज इट मीन? द वर्ड वाज फर्स्ट यूज्ड बाय हेरोडोटस, द ग्रीक हिस्टोरियन ऑफ द 5th century BC, ठीक है, फॉर हिज बुक एंटाइटल्ड द हिस्ट्रीज, ठीक है। इन्होंने भाई साहब पहली बार हिस्ट्री को यूज किया था, एज हेरोडोटस वाज द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट यूज बाय हेरोडोटस द ग्रीक हिस्टोरियन ऑफ द 5th century BC फॉर हिज बुक एंटाइटल्ड द हिस्ट्रीज, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। द मेथड ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। देखो, हो सकता है किसी धर्म में बहुत सारी चीजें पहले से चली आ रही हैं, ठीक है, लेकिन हिस्ट्री उसको नहीं मानेगा, हिस्ट्री प्रूफ को कंसिडर करता है, ठीक है। तो समझ लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं आपके, ठीक है, वेद हैं, पुराण हैं, ठीक है। हो सकता है हिस्ट्री सबको कंसिडर ना करें, ठीक है। समझ लो पुराण में लगाओ कुछ लिखा हुआ है कि भगवान ऐसे अवतारित हुए थे, उन्होंने ये काम किया था, ठीक है, उस चीज़ को मान सकते हैं, लेकिन एज अ हिस्टोरिकल स्टडी उसको नहीं माना जाएगा। वो हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में नहीं आएगा, तब तक नहीं आएगा जब तक हिस्ट्री को उसका एविडेंस और प्रूफ ना मिले, प्रॉपर एविडेंस या प्रूफ ना मिले, ठीक है, ओके। सो द मेथड ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, तो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी भाई साहब किन चीजों पे बेस्ड है? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, आपका जो मेथड है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का, ठीक है, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी इट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड हेंस बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ रेलेवेंट क्वेश्चंस। भाई साहब साइंस की स्टडीज चालू ही होती है क्वेश्चंस से, ठीक है। तो यहाँ पे भी हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, ये आपका साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है।
साइंटिफिक प्रिंसिपल्स मतलब क्या हो जाएंगे, आपका एविडेंस है कि नहीं, ये वाकई में ये घटना घटी थी या नहीं, अगर घटी थी तो कहां से हमको मालूम चलता है, क्या सॉइल में से हमको कुछ मिला है, क्या कुछ राइटिंग में हमको मिला है, उस टाइम के किसी राइटिंग से हमको मिला है, क्या कुछ इंस्क्रिप्शन से हमको मिला है, क्या कुछ कॉइन से हमको मिला है, ये सारे तमाम आपके जितने भी हैं, दीज आर डिफरेंट वेज इन विच दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट कुड बी प्रूव्ड। इसीलिए हम बोल रहे हैं इसको साइंटिफिक प्रिंसिपल। साइंस मतलब होता है प्रूफ, आप हवा में बात नहीं कर सकते, ठीक है, साइंस हवा में बातों को नहीं मानेगा, आप प्रूफ दीजिए, ठीक है। अगर आपका हिस्टोरिकल एविडेंस, कोई घटना घटी है और आप उसको नैरेटिव में लिख रहे हैं एंड यू वांट इट टू बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर हिस्ट्री, देन यू गॉट टू हैव बैकअप ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दैट प्रूव इट। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके, दीज क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक, ठीक है, मतलब क्या होता है, रिगार्डिंग द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज एंड एक्सपीरियंसेस। एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब क्या होता है, देखो ये जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं हिस्ट्री में, ठीक है, ये जो क्वेश्चनिंग की आपका, देखो क्वेश्चंस करोगे तो ही हिस्ट्री के मतलब, अच्छा ये घटना घटी, कब घटी, अच्छा क्यों घटी, ठीक है, कैसे घटी, कौन लोग इन्वॉल्व थे, ये सारे क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं, है ना। एक कोई घटना घटी है जिसके इससे इतने सारे तमाम क्वेश्चंस होंगे, ये आपके ह्यूमन वैल्यूज एंड एक्सपीरियंसेस से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। ऐसे कोई उल्ट सुल्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, अच्छा जब ये घटना घटी थी तब सूरज किधर था, चंद्रमा किधर थी, ठीक है, ये सब नहीं, ठीक है। आप भाई साहब एक पर्टिकुलर डेट को या इवेंट को रेफर कर रहे हैं, कौन लोग एसोसिएटेड थे, क्यों घटी थी, उसके पहले का संदर्भ क्या था, उसके बाद क्या हुआ, क्यों ये घटना घटी, क्यों लोग यूनाइट होकर ये फाइट किए, ऐसे सारी चीजों पे गौर तलब करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई साहब अच्छा उस दिन चांद निकला था, अच्छा भाई साहब उस दिन सूरज क्या निकला था या नहीं निकला था, या बारिश हो रही थी क्या, ये सब पे हमको नहीं जाना है, ठीक है। दीज आर इररिलेवेंट थिंग्स, ठीक है। तो हमारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं दे आर कंसर्निंग ह्यूमन वैल्यूज एंड एक्सपीरियंसेस, ह्यूमन वैल्यूज और एक्सपीरियंसेस ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं। इसको अपन क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोसेंट्रिक क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। बच्चा पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चंस जो भी आप हिस्ट्री में पूछते हो वो आपके हिस्टोरिकल रिसर्च में किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, एंथ्रोपोसेंट्रिक, व्हिच मींस रिगार्डिंग द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज एंड एक्सपीरियंसेस। पूरे दुनिया को हम ह्यूमन वैल्यूज और एक्सपीरियंसेस के बतौर देखते हैं, ठीक है। वी कंसिडर द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज एंड एक्सपीरियंसेस। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। ओके, दे आर अबाउट द डीड्स एंड मेंबर्स ऑफ एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटीज ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटी या पुरातन एंशिएंट सोसाइटी में ह्यूमंस लोग किस तरह से बिहेव करते थे उसकी स्टडी है हिस्ट्री, ठीक है। सो दे आर अबाउट द डीड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटीज ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। हिस्ट्री डज नॉट डील विद एनी इंटर रिलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है। आपके भगवान के साथ आप किसी भी भगवान को मानो और ह्यूमन डीड्स, इनके बीच में किसी चीज को हिस्ट्री कंसिडर नहीं करता है। समझ में आ रही है? कोई भक्त होंगे जिनके लिए स्वयं भगवान पधारे होंगे धरती पर, हिस्ट्री सब नहीं मानेगा, ठीक है। आप मान सकते हैं, आप इसका भजन कर सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन हिस्ट्री इज नॉट गोइंग टू कंसिडर दिस। हिस्ट्री का स्टडी, देयर इज नो इंटर रिलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड द ह्यूमन डीड्स। ह्यूमन डीड्स और डिवाइन के बीच में कुछ नहीं है, ठीक है। ह्यूमन डीड्स के बारे में है, लेकिन ह्यूमन डीड्स और गॉड के बीच में कुछ भी रिलेशनशिप हिस्ट्री स्टैब्लिश नहीं करता है, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो होगी आपके भाई साहब बहुत सारे आपके जो डिवाइन स्क्रिप्टोलॉजीज हैं उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन हिस्ट्री उसकी स्टडी नहीं करती है, ठीक है। हिस्ट्री डजंट कंसीडर देम एट ऑल। कोई भी मैजिकल घटना घटी हुई होगी, अभी जैसे समझ लीजिए आपने सुना रहेगा कि द्वापर युग में कृष्ण आए और उन्होंने गोवर्धन पर्वत को ऊपर कर दिया। बहुत बारिश हो रही थी, बारिश का मौसम है, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत बारिश हो रही थी तो पूरा वृंदावन बह रहा था, तो उन्होंने भाई साहब अपनी उंगली पे एक पूरे पर्वत को ऊपर कर दिया, तो सब लोग उसके अंदर आ गए। हिस्ट्री ऐसी घटनाओं को नहीं मानता है। आपके रिलीजियस बुक्स में ये होगा, आप मान सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री को जब तक प्रूफ नहीं मिलेगा तब तक ऐसी घटनाओं का कोई विश्लेषण हिस्ट्री नहीं करेगा। समझ में आ रही है? ठीक है। डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स, डिवाइन और ह्यूमन डीड्स के बीच में कुछ भी घटना घटी हो उसको हिस्ट्री नहीं मानता है, ठीक है। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री, दीज क्वेश्चंस आर आंसर्ड विद द सपोर्ट ऑफ रिलायबल एविडेंस। द ग्राफ ऑफ जर्नी ऑफ मैनकाइंड इज प्रेजेंटेड बाय हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स।
तो हमको ये जो कोई ग्राफ है भाई साहब, जैसे समझ लो ऐसा एक पूरा प्रेजेंटेशन है, ये कहाँ से आया है? हमको ऐसे अवशेष मिले हैं, हमको बंदरों के अवशेष मिले हैं, फिर थोड़ा सा विकसित मानव का अवशेष मिला है, फिर धीरे 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 ऐसे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में जो हमको स्केलेटन्स, बोन्स और सैंपल्स मिले हैं, उससे हम बता सकते हैं कि ये इंसान उस टाइम पे इस तरीके का दिखता था। ठीक है, तो दीज आर एविडेंसेस दैट वी हैव गैदर्ड टिल नाउ। हम ऐसी मनगढ़ंत कहानी नहीं बुन रहे हैं, ये भी जो हम प्लॉट कर रहे हैं इसका भी पूरा हमको प्रूफ है। हमने जो भी हमको पुरातत्व से मिला हुआ है, जो भी सैंपल्स हमको मिले हुए हैं डीएनए के या वैसा बोन्स के, उससे ये प्रूव होता है कि इस तरह से ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, ओके। अ ग्राफ ऑफ द जर्नी ऑफ मैनकाइंड इज प्रेजेंटेड विद द पास्ट ऑफ ह्यूमन डीड्स। ओके, द रूट्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी आर फाउंड इन डैश हिस्टोरिकल राइटिंग्स, इंडियन, ग्रीक, जर्मन, इटालियन। इन क्योंकि ग्रीक आपका देखो, ग्रीस एक टाइम पे बहुत समृद्ध नेशन था। ठीक है, बहुत ही समृद्ध नेशन था, सारी चीजें ग्रीक से ओरिजिनेट हुई थी एक टाइम पे, ग्रीस से। ठीक है, ओके। हिस्ट्री इज ओरिजिनली इंग्लिश, फ्रेंच, ग्रीक और जर्मन टर्म। इट इज अ ग्रीक टर्म। ओके, इट्स अ ग्रीक टर्म। ओके, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी। तो अभी हम बात करेंगे कि कैसे ये जो साइंस का पर्सपेक्टिव है, रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछना और उनके आंसर्स ढूंढना, और हिस्ट्री को उसी तरीके से पढ़ना जैसे एक और साइंस का सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो, ऐसे कैसे इवॉल्व हुआ इन यूरोप। यूरोप में वैसा भी कैसे इवॉल्व हुआ। ठीक है, प्रायर टू द 18th century all European universities were interested only in the philosophical discourses revolving around the divine phenomena। अभी भाई साहब एक समझ लीजिए, हमारी जो स्टडीज होती थी इसके पहले 18th century के पहले जितने भी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज थे, ये लोग भाई साहब कैसे क्या पढ़ते थे? फिलॉसफी पढ़ते थे। फिलॉसफी मतलब जीवन शैली, मतलब आपके जितने भी रिलीजियस बुक्स में जो कुछ भी है उसके बारे में पढ़ते थे। वेर इंटरेस्टेड ओनली इन द फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेस, चाहे वो बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे जो भी हो, जहां पे भी हो, जिस कंट्री में भी हम पढ़ रहे हो, रिवॉल्विंग अराउंड डिवाइन फिनोमिना। तो मतलब सारी जिज्ञासा जो इंसान की थी वो डिवाइन फिनोमिना को लेकर थी, भगवान को लेकर थी। तो हमारा जो एजुकेशन का पर्सपेक्टिव था वो भी भगवान को लेकर ही था। ठीक है, तो मतलब वी वर ऑल कंसर्न्ड विद द डिवाइन फिनोमिना। नोबडी वाज एक्चुअली ट्राइंग टू सी हिस्ट्री इन अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ओके। In 1737 the Göttingen University was found in Germany। ये वाला एक यूनिवर्सिटी, और यहां से भाई साहब हिस्ट्री को प्रॉपरली पढ़ना चालू हुआ। 1737 Göttingen University was found in Germany and this marks the event wherein वहां पे एक हिस्ट्री का डिपार्टमेंट क्रिएट हुआ और फिर हिस्ट्री का पढ़ाई चालू हुआ। ठीक है, इट वाज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू हैव एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। सारी यूनिवर्सिटीज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, मैथ्स का डिपार्टमेंट होता है, साइंस का डिपार्टमेंट होता है, फिजिक्स का डिपार्टमेंट होता है। ये पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां पे भाई साहब हिस्ट्री एज अ डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया। ठीक है, और हिस्ट्री की स्टडीज होने लगी। नोटेबल स्कॉलर्स, रेने डेस्कार्टेस। ठीक है, रेने डेस्कार्टेस, ये ईयर था इनका 1596 से 1650। अभी हम देखेंगे कि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या क्या था। देखो, कोई भी साइंस जब इवॉल्व होता है, जैसे आप बोलते हो भाई साहब न्यूटन, ठीक है, अभी अगर आप साइंस की बात करोगे तो आर्किमिडीज हो गए, न्यूटन हो गए, इन सब ने भाई साहब बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन साइंस में किया है। गैलीलियो हो गए, दे हैव ऑल कंट्रीब्यूटेड टू द स्टडी ऑफ साइंस। डाल्टन हो गए। इसी तरह से स्टडी ऑफ हिस्ट्री में किस किस का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। तो द फर्स्ट पर्सन इज रेने डेस्कार्टेस। तो इनका प्रिंसिपल क्या था? वेरीफाइंग द रिलायबिलिटी। ठीक है, हर एक इंसान जो आए और जिन्होंने हिस्ट्री के बारे में पढ़ने, जानने, समझने और समझाने की कोशिश की है, उनका एक प्रिंसिपल हुआ करता था। तो इनका प्रिंसिपल क्या था भाई साहब? रिलायबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग देम। तो कोई भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट अगर आपको मिला है तो आप पहले उसका प्रूफ देखिए, ये सच में इस पे हम रिलाई कर सकते हैं या नहीं, वाकई में ये उस टाइम पे लिखा गया है या नहीं। कोई भी कुछ भी लिख सकता है ना। ठीक है, मुझे याद है कि मेरे गांव में एक बार, बहुत पहले की बात है, तो कोई पंडित जी भाई साहब तालाब में नहाने गए और उनको एक मूर्ति मिली। तो गांव भर में बखेड़ा खड़ा हो गया, भाई साहब ये पुरातत्व मूर्ति मिली है। कुछ तो कृष्ण की मूर्ति थी, कुछ तो मूर्ति थी, और लोग अलग अलग कहानियां बुनने लगे। कोई बोल रहा है मुगल साम्राज्य में मंदिर तोड़ा गया था, वहां से ये मूर्ति उसमें फेंकी गई थी, बहुत पहले का मूर्ति है। अलग अलग लोग कुछ ना ऐसा बोलते बोलते भाई साहब पूरी मीडिया इकट्ठा हो गई वहां पे,
वो वैन उन लेकर आ गए, वो लोग पिक्चर उक्चर निकाल रहे हैं उसका, ठीक है। तो मतलब जो गांव के सबसे पुराने मुखिया थे, उनके पास सब लोग गए कि आप इस पे कुछ बोल सकते हैं क्या। तो उन्होंने बोला, देखिए हमारा एक पुराना मंदिर था, मेरे सामने ये घटना घटी थी, उसमें एक पुजारी को हमने रखा था इसी मंदिर में, और वो पुजारी चोर था। इस मूर्ति को लेकर वो भागने की कोशिश कर रहा था, हमने चिल्लाया तो उसने ये तालाब में कूद गया वो, उसके बाद तालाब पार करके उधर चला गया, लेकिन शायद मूर्ति उससे गिर गई, ये वही मूर्ति है। तो मतलब ये कोई पुरातत्व चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अक्सर ऐसा होता है कि कोई चीज़ अगर हमको मिलती है किसी तालाब से, किसी ज़मीन के नीचे से, तो हम उसको पुरातत्व ही मान लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए इनका कहना क्या था कि भाई साहब जितने भी आपको हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, पहले चेक कीजिए कि वाकई में वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट हैं कि बना बनाया किसी ने भाई साहब उसमें इंड्यूस कर दिया है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिटिकली एग्जामिन वेदर दे आर एक्चुअली रिलायबल और नॉट, ठीक है। ओके, बुक गिवन बाय हिम, डिस्कोर्स ऑन द मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, डिस्कोर्स ऑन द मेथड, ठीक है। रूल गिवन बाय हिम इन हिज बुक, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड, ठीक है। किसी भी चीज को मानो मत जब तक आप उसको पूरा पूरा जान ना लो, ठीक है। तो मानने का प्रोसेस नहीं है, जानने का प्रोसेस है, ठीक है। सारा सब कुछ जान लेंगे, ठीक है। नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड, जब तक हम सारे डाउट्स को भाई साहब क्लियर ना कर ले पूरा पूरा जानकर, तब तक मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आ रही है, ठीक है। तो इनका भाई साहब बहुत ही डिस्कोर्स ऑन द मेथड, दिस वाज द बुक दैट वाज रिटन बाय हिम। और इन्होंने बोला कि सारे जितने भी आपको हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिलते हैं उसको प्रॉपरली वेरीफाई कीजिए, तब जाकर अपने कंक्लूजन पर पहुंचिए। ओनली आफ्टर प्रॉपरली वेरीफाइंग वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। वॉल्टेयर, ठीक है, 1694 से 1778 तक हुए, ठीक है। His original name was Francois Marie Audit. His opinion, along with the objective truth and chronology of historical events, understanding all aspects of human life. अभी देखो यहाँ पे पहले हिस्ट्री कैसे पढ़ी जाती थी भाई साहब, ये राजा थे, ठीक है। इनका राज्य इतने से इतने साल तक था, इसके दौरान इन्होंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, कुछ में जीते कुछ में हारे, ठीक है। कितना एक्सपेंशन हुआ, और या बाहरी ताकतों ने इनको भाई साहब सबड्यू किया, ये सब, ठीक है। लेकिन अक्सर हम उस दौरान जो सोशल सेटअप है उसको इग्नोर कर जाते हैं, मतलब कॉमन लाइफ कैसा था, ठीक है। सो इन्होंने इस पे जोर दिया, अलोंग विथ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एंड क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। हाँ, ये जानना जरूरी है कि ऑब्जेक्टिव ट्रूथ क्या है, जैसा इन्होंने बोला कि सच में ही जो तुम हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट एग्जामिन कर रहे हो वो वाकई में पुरातत्व की चीज है या मनगढ़ंत कुछ है, ठीक है। फिर क्रोनोलॉजी मतलब एक के बाद एक जो घटनाएं घटी हैं वो वाकई में घटी हैं या नहीं। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, सारे एस्पेक्ट्स जो ह्यूमन लाइफ के हैं उसको समझना। सोशल ट्रेडिशंस, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, मतलब आप अगर हिस्ट्री को पढ़ रहे हो तो किसी राजा या उसकी गाथा ही नहीं पढ़नी है, उस टाइम पे जो लोग थे वो कैसे अपना घर चलाते थे वो भी हिस्ट्री का एक पार्ट है। कॉमन लाइफ कैसा था, धंधा पानी कैसा था, लोगों का आय व्यवस्था क्या था, एग्रीकल्चर कैसा था, ये सारी चीजें भी जानना उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री के ये सारे, ठीक है, कोई भी राजा भाई साहब ऐसे हवा में तो राज नहीं करेगा ना, वो एक राज्य पे राज करेगा और उस राज्य में लोग होंगे जो या तो उसको सपोर्ट करेंगे या तो नहीं सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट तब करेंगे जब वो उनके प्रॉब्लम्स को सुलझाएगा, तो उनके प्रॉब्लम्स को जानना भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो इन्होंने बोला भाई साहब ह्यूमन लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को जानना भी हिस्ट्री की एक प्रक्रिया है, ठीक है। क्लियर है? वोल्टेयर स्टेटेड दैट, ओके। ओके, फ्रेडरिक हीगल, ठीक है, तो इनका क्या मानना था, देखो हीगल्स फिलॉसफी, हिस्टोरिकल रियलिटी शुड बी प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल मैनर, एक लॉजिकल तरीके से हिस्टोरिकल रियलिटी को प्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। लॉजिकल मतलब भाई ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा ना, ठीक है, एक लॉजिकल तरीके से इसको प्रेजेंट करना चाहिए। और क्या है भाई साहब, टाइमलाइन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स वाज इंडिकेटिव ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है। तो सारा जितना भी हिस्टोरिकल इवेंट्स है, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, ये प्रोग्रेस को इंडिकेट करना चाहिए, ठीक है। ओके, प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री इज बाउंड टू चेंज विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू एविडेंसेस। इनका ये मानना है कि भाई देखो, जैसे समझो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, पहले आपके कुछ 8-10 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे,
डाल्टन के टाइम पे, फिर भाई साहब न्यूमैन के टाइम पे और ज्यादा हुए, फिर भाई साहब आपके मेंडलीव के टाइम पे और ज्यादा हुए। आज की तारीख में 118 है, लेकिन क्या 118 एलिमेंट्स ही हैं? हो सकता है और चलकर और भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो, साइंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने भी बोला कि भाई साहब आज हमने हिस्ट्री को ऐसे प्रेजेंट किया है on the basis of evidences that we have gathered till now, but there is a high possibility that if we gather some more evidences then the history that we have shaped today might change। ठीक है, एक टाइम था जब लोगों ने बोला कि भाई साहब 10 ही एलिमेंट हैं, फिर एक टाइम आया जब 60, 70, 80, आज 118 एलिमेंट है। समझ में आ रहा है? और भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये as and when you are discovering the elements you are basically increasing their numbers। so इसी तरह से इन्होंने भी बोला कि भाई जो एविडेंसेस हमको अभी तक मिले हैं उसके बना पर हम एक हिस्टोरिकल नैरेटिव पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो अंततः सही हो सकता है कल हमको और भी कुछ एविडेंस मिल जाए, ठीक है, तो वो चेंज हो सकता है, ठीक है, इट कैन चेंज विद द डिस्कवरी। तो रीजन इन हिस्ट्री इन्होंने एक बुक लिखी थी, द कलेक्शन ऑफ हिज लेक्चर्स एंड आर्टिकल्स इज पब्लिश्ड इन अ बुक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ philosophical sciences। ठीक है, dialectics, the method of analysis which is based on opposite, there is true, false, good, bad etc. to understand the true nature of an event। देखो अक्सर क्या होता है ना, हम आजकल सुनते भी हैं कि भाई साहब जीवन में पॉजिटिव रहो, क्यों नेगेटिव क्यों नहीं रह सकते हैं ना? क्या मतलब मैं एक ऐसी चर्चा का विषय है, ठीक है, कि जीवन में भाई साहब पॉजिटिव रहो। अरे भाई साहब ठीक है पॉजिटिव रहो, लेकिन नेगेटिव को भी तो मान के चलो ना, क्योंकि नेगेटिव भी आपके जीवन में बहुत सारी चीजें यूजफुल करता है। आपने भाई साहब पेंसिल डिस्कवर किया, पेंसिल से आप लिखने के लिए तो पॉजिटिव हो गया, भाई साहब कुछ लिखना है पेंसिल डिस्कवर किया, लेकिन हो सकता है आप कुछ गलत भी लिख दें, तब क्या करेंगे भाई साहब? इरेजर की जरूरत पड़ेगी, तो नेगेटिव के हिसाब से आपका इरेजर आया। समझ में आया? आपने भाई साहब पॉजिटिव लिया और आपने प्लेन डिस्कवर किया, लेकिन कल को प्लेन में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो नीचे कैसे आओगे? पैराशूट चाहिए ना, कोई तो नेगेटिव सोच रहा है कि भाई साहब पैराशूट चाहिए नीचे आने के लिए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं है, बात है भाई साहब डायलेक्टिक्स, ठीक है, बेस्ड ऑन ऑपोजिट्स, ठीक है, मेथड ऑफ एनालिसिस विच इज बेस्ड ऑन ऑपोजिट्स, इसको अपन क्या बोलते हैं? डायलेक्टिक्स, ठीक है। तो हिस्टोरिकल एनालिसिस ट्रू फॉल्स गुड बैड राइट रॉन्ग इसके हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। तो गुड और बैड एक्सेट्रा टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ इवेंट। किसी घटना को अगर सही जानना है तो आपको इस तरह की एनालिसिस आप देखेंगे कि ये ट्रू है कि नहीं, फॉल्स है कि नहीं, गुड है कि नहीं, बैड है कि नहीं, राइट है कि नहीं, रॉन्ग है कि नहीं। कोई घटना किसी समय पे शायद गुड हो, लेकिन बाद में चलकर वो बैड हो सकती है, और उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। सो जैसे आज से अगर 100 साल पहले अगर आपने किसी को बोला था भाई साहब तुम खड़े खड़े यहां से दुबई में किसी को कॉल लगा सकते हो, वो आप पे हंस देगा, नहीं था। आज की तारीख में ये पॉसिबल है, ठीक है। तो अलग अलग काल में अलग अलग चीजें अलग अलग प्रायोरिटीज ले लेती हैं, ठीक है। जैसे पहले के ज़माने में भाई साहब आपके साथ अगर कोई फ्रॉड करना चाहे तो आप पे भाई साहब पूरा नज़र रखेगा वो, अच्छा आप इस टाइम पे बैंक जाते हैं, अच्छा आप इस टाइम पे स्कूल जाते हैं, अच्छा आप इस टाइम पे बैंक से पैसा लेना, इस टाइम पे कुछ फ्रॉड किया जा सकता है। लेकिन आज की टाइम पे घर बैठे वो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, क्योंकि टाइम्स हैव चेंज्ड। साइबर सिक्योरिटी भाई साहब आज की तारीख में कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और कभी कभी यही हमारे खिलाफ भी हो जाता है। जिस तरह से लाइफ ईजी हुआ है उस तरह से कभी कभी, तो पहले के ज़माने में भाई साहब देयर वाज नो साइबर सिक्योरिटी क्राइम ब्रांच होता था, लेकिन कोई साइबर सिक्योरिटी सेल नहीं होता था पुलिस डिपार्टमेंट में, लेकिन आज की तारीख में है, क्योंकि बहुत साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं आपके, है ना, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स। तो आप हर चीज़ को देखो, जैसे मैं अगर बोलूँ कि भाई साहब इंटरनेट या ऑनलाइन हैज़ इट मेड आवर लाइफ्स ईजी? यस इट हैज़, बट हैज़ इट एट द सेम टाइम मेड आवर लाइफ डिफिकल्ट? यस इट हैज़। तो हर चीज़ का एक पर्सपेक्टिव है, गुड और बैड पर्सपेक्टिव लेना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। सो किसी भी इवेंट में हम किसी इवेंट का एनालिसिस कैसे करेंगे? डायलेक्टिक्स से, ठीक है। वो वाकई में हमारे लिए कितना यूजफुल हुआ या वो वाकई में हमारे लिए कितना अनयूजफुल था, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं डायलेक्टिक्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके ओके। लियोपोल्ड वॉन रैंके ही क्रिटिसाइज्ड इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री। इन्होंने बोला भाई साहब ये जो मनगढ़ंत हम लोग बनाते हैं अपना स्टोरी दादा परदादा तो सुनकर आते हुए, ये इमेजिनेटिव नरेशन है, इसको त्याग दो, ठीक है, ये सही नहीं है, आपको हमेशा क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इमेजिनेटिव नैरेटिव को इन्होंने बोला कि दिस इज नॉट द वे इन विच हिस्ट्री शुड बी स्टडीड।
He stated that information gathered through original documents is of utmost important. Original documents होने चाहिए, तभी जाकर उससे जो information मिल रहा है वो हमारे लिए important होगा, ठीक है? All types of documents associated with a historical event should be examined with greatest care to reach the historical truth. जो भी हमको डॉक्यूमेंट्स मिला है पर्टिकुलर हिस्टोरिकल इवेंट के लिए, उसको बहुत केयरफुली एग्जामिन करने के बाद ही हम हिस्टोरिकल ट्रूथ या नतीजे पे पहुंच सकते हैं। उसके पहले मनगढ़ंत आप जो भी ख्याली पुलाव पकाओगे वो सिर्फ ख्याली पुलाव ही है, उसको हम हिस्टोरिकल नैरेटिव नहीं मान सकते, ठीक है? किसी राजा को आपने बोला बहुत अच्छा राजा था, लेकिन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड दिखा रहे उसके बहुत सारे खामियां थी, तो आप उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे हो, तो ये आपका इमेजिनेटिव हिस्ट्री हो गया। दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ प्रॉपर हिस्टोरिकल नैरेटिव, ठीक है? यू आर हाइडिंग द फैक्ट्स और यू आर नॉट प्रेजेंटिंग देम द वे दे शुड बी। क्या ये समझ में आ रहा भाई साहब? ठीक है, ओके। हिज बुक्स द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, कार्ल मार्क्स। ये भाई साहब बहुत खतरनाक इंसान है, ठीक है? दिखने में बहुत खतरनाक लग रहे हैं, दिन के 40 सिगरेट पीते थे ये, और इनका पॉलिटिक्स के साथ कुछ भी लेना देना नहीं था, ठीक है? ये राइटर थे, लेकिन बहुत ही उम्दा किस्म के राइटर थे, ठीक है? इन्होंने सोशल सेटअप पे अपनी जो थियरी लिखी, वो थियरी आज की तारीख में मतलब देशों के बीच में विवाद का बन गया, ठीक है? कार्ल मार्क्स बेसिकली एक ज्यू थे एंड ही वाज अ जर्मन, ठीक है? जर्मनी में थे ये, और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था दास कैपिटल। दास कैपिटल में उन्होंने कम्युनिज्म को प्रेडिक्ट किया। कम्युनिज्म मतलब क्या होता है? एक ऐसा फॉर्मेट है सोसाइटी का जहां पे गवर्नमेंट सिर्फ वेलफेयर के बारे में सोचेगा, ठीक है? मतलब आपका जो प्रॉपर्टी है, जो भाई साहब आपका पैसा है, वो सब में इक्वली बंटने की व्यवस्था है, ठीक है? इसको बहुत डीपली हम बाद में समझेंगे, लेकिन इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसके ऊपर स्टालिन ने काम किया और लेनिन ने काम किया। लेनिन बेसिकली वाज अ रशियन हु बेसिकली ओवरथ्रू द बोल्शेविक एम्पायर दैट वाज देयर इन रशिया, एंड फाइनली वहां पे भाई साहब कम्युनिज्म का गवर्नमेंट हुआ। उसके बाद स्टालिन आए। तो खैर रशिया जैसा एक स्ट्रॉन्ग कंट्री इनके सिद्धांतों पे बना है, हालांकि इनका पॉलिटिक्स के साथ कोई लेना देना नहीं था, ठीक है? ही वॉज एज गुड एज, जैसे हेरिडिटरी एंड वेरिएशन में हमने पढ़ा था, मेंडल थे भाई साहब, उन्होंने अपना काम करके छोड़ दिया था, ठीक है? इन्होंने भी एक बुक लिखकर छोड़ दी थी, लेकिन उस बुक की इतनी चर्चा हुई, आज की तारीख में भी दास कैपिटल इज वन ऑफ द मोस्ट रेड बुक्स इन हिस्ट्री। बेस्ट सेलर आज की तारीख में भी ये है, इससे ज्यादा कोई भी किताब आज तक पढ़ी नहीं गई है अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है? दास कैपिटल इन्होंने जर्मन भाषा में लिखी थी, उसके सारे भाषाओं में रूपांतरण हो चुके हैं, ठीक है? ओके, सो इनके हिसाब से भाई साहब इनका भी हिस्ट्री में हिस्ट्री वाज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, इट वाज अबाउट लिविंग पीपल, ठीक है? तो आइडियाज के बारे में नहीं है, लिविंग पीपल, जो लोग जिंदा हैं उनकी कहानी है, उनकी गाथा है, ठीक है? ओके, ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। इनके हिसाब से भाई साहब सारा स्ट्रगल क्लास पे था, ठीक है? इन्होंने बोला कि भाई साहब सारा हिस्ट्री सारे कंट्रीज में क्लास स्ट्रगल का मामला है, ठीक है? अपर कास्ट, लोअर कास्ट, अलग अलग जो भी कास्ट हैं सारे कंट्रीज में इनका भाई साहब एक, कहीं पे भाई साहब क्लास स्ट्रगल है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, कहीं पे भाई साहब क्लास स्ट्रगल है ऑन द बेसिस ऑफ रेसिज्म, ठीक है? कहीं पे भाई साहब क्लास स्ट्रगल है, जैसे हमारे इंडिया में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसा डिवीजन है। हर कंट्री में क्लास स्ट्रगल हुआ है, ठीक है? हर कंट्री में अकॉर्डिंग टू हिम, और इसी क्लास स्ट्रगल की स्टडी हिस्ट्री है, ठीक है? ओके, different strata of the society may not get equal access to the means to meet their fundamental needs। तो अलग अलग स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो सबको सेम एक्सेस नहीं है सारी चीज़ों का, सारी सुख सुविधाओं का ऑब्वियसली सेम एक्सेस नहीं होगा। सो डिफरेंट स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, अलग अलग लोग अलग अलग लेवल पे हैं, ठीक है? मे नॉट गेट इक्वल एक्सेस टू द मीन्स टू मीट देयर फंडामेंटल नीड्स। कभी कभी फंडामेंटल नीड्स को फुलफिल करने के भी साधन नहीं उपलब्ध होते हैं, ठीक है? दे डू नॉट हैव इट। ओके, इट कॉजेज द डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इनटू क्लासेस लीडिंग टू क्लास स्ट्रगल। इससे होता है भाई साहब आपका क्लास स्ट्रगल। द क्लास दैट ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट्स द रेस्ट ऑफ द क्लासेस। तो इनके हिसाब से जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो दूसरों को एक्सप्लॉइट करेगा, ठीक है? मतलब जो लोग मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो लोग फैक्ट्री ओनर्स हैं, दे विल बी रिच पीपल एंड दे विल बी एक्सप्लॉइटिंग द पुअर, ठीक है? ऐसा ही चलेगा, यही समाज की व्यवस्था है। और इसीलिए इन्होंने बोला कि प्रोडक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को हैंडल करना चाहिए, और यही आपका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, यही कम्युनिस्ट लॉजिक है, ठीक है? प्रोडक्शन के जो मीन्स हैं वो कभी भी कैपिटलिस्ट के हाथ में नहीं जाना चाहिए, वो हमेशा गवर्नमेंट के पास ही रहना चाहिए।
अब इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, ठीक है। जैसे भाई साहब अगर अभी लाइट चली गई, ठीक है, तो आप क्या करोगे भाई साहब, कॉल करोगे कभी तक आएगी, हाँ आएगी, जब आएगी क्या कर लोगे, इसके बाद क्या कर लोगे, कुछ भी नहीं ना भाई साहब, इसके बाद तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन समझ लो भाई साहब तुम अमेज़न से कोई चीज़ परचेज़ की हो और वो ख़राब निकली, तब तुम कॉल करके वैसे ही करोगे, नहीं ना भाई साहब, तब तो तुम उसको बैंड बजा दोगे ना, जब तक वो भाई साहब फिर से लेकर ना जाए। यू विल इंश्योर दैट द पर्सन डूज, उसको करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये आपका एक हो गया, आपने प्राइवेट एंटरप्राइज से कोई चीज़ परचेज की है, और दूसरा हो गया आपने गवर्नमेंट से कोई चीज़ परचेज की है। यहाँ पे भाई साहब आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, यहाँ पे आप कर सकते। क्यों यहाँ पे ज़्यादा नहीं कर सकते? क्योंकि भाई साहब गवर्नमेंट किसने चुनी है? आपने, आपकी ही चुनी हुई सरकार है, ठीक है, आपकी बहुमत प्राप्त हुई सरकार है और वही सरकार चला रही है। आप अब इसको चैलेंज करेंगे मतलब अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं, आप तली फंसेंगे आप, ठीक है। ये एक सिस्टम है, समझ में आ रही है। तो इनके हिसाब से जितना भी प्रोडक्शन होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास रहना चाहिए। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन इनके हिसाब से ये भी है कि अगर प्रोडक्शन हमेशा, जो लोग भी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे, चाहे मैन्युफैक्चरर्स हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे फैक्ट्री ओनर्स हो, दे विल ऑलवेज बी एक्सप्लॉइटिंग द लोअर क्लास और लोअर इनकम ग्रुप पीपल, ठीक है। इनका शोषण होगा। मतलब समझो कि जो भाई साहब फैक्ट्री ओन करता है वो अपने मर्जी से 2 घंटा गया फैक्ट्री में चलाया, उसको क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं है। लेकिन जो फैक्ट्री में काम करता है उसके लिए भाई साहब 9 घंटे की शिफ्ट है, शायद 9 का 11 हो जाए, ठीक है, लेकिन उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, मतलब उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। वो 9 घंटे की शिफ्ट है तो भाई साहब अगर उसको 6 घंटा काम करके जाना पड़ेगा, अगर समझ लो जाना है, पगार नहीं मिलेगी, आधी पगार मिलेगी, आधी से कम मिलेगी, ऐसे कंडीशंस हैं। तो एक्सप्लॉइट कौन हो रहा है? जो वर्कर क्लास है, ठीक है, ओके। His books Das Capital, most referred book all over the world, जैसे मैंने आपको बोला सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है all over the world, Das Capital। Actually Das Capital is written in Germany, ठीक है, जर्मन भाषा में ये लिखी गई है, ओके। Annales School, new school of historiography arose in France on the onset of 20th century, इसको हम Annales School बोलते हैं। Started by French historians, it give a new direction to history writing। According to this school, हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट द पॉलिटिकल इवेंट्स। तो इस स्कूल के हिसाब से, स्कूल मतलब देखो अलग अलग चीजों को, आर्ट्स में ना जब हम चीजों को पढ़ते हैं तो अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, जैसे गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट था, ठीक है, तो इस तरह से हिस्ट्री भी अलग अलग स्कूल्स में है। तो फ्रेंच स्कूल्स के हिसाब से, जिसको एनालिस स्कूल भी हम बोलते हैं, हिस्ट्री वॉज नॉट ओनली अबाउट द पॉलिटिकल इवेंट्स, किंग्स, ग्रेट लीडर्स, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी एंड वॉर्स, सिर्फ इन चीजों की कहानी नहीं है, बट इट वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड द क्लाइमेट। क्या है भाई साहब, ठीक है, एक जगह का क्लाइमेट कैसे होता है, क्योंकि जैसा एक जगह का क्लाइमेट होता है वैसे ही उस जगह का भाई साहब रहन सहन होता है। आपके मुंबई में भाई साहब 4 महीना बारिश चलती है, तो हर एक के पास रेनकोट का होना जरूरी है या छाता होना जरूरी है, ठीक है। सो ये सब भाई ये होगा ही, ठीक है। जो राजस्थान में रहता है उसके पास शायद छाता होगा ही नहीं, ठीक है, कम से कम रेन को बचने के लिए छाता नहीं होगा, या शायद वो कभी जीवन में अपना रेनकोट ही ना खरीदे, ठीक है। Local people, agriculture, trade, technology, means of communication, social divisions and collective psychology use are सब के सब भाई साहब हिस्ट्री के पार्ट है। Everything, not only wars, not only political leaders, not only kings and their kingsmen, everything should be a part of history। मतलब कॉमन लाइफ का हर हिस्सा हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल, ओके। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, अभी फेमिनिस्ट मतलब क्या है? देखो ज्यादा करके वुमेन के एस्पेक्ट को हर बार हिस्ट्री में इग्नोर किया गया है, ठीक है, हिस्टोरिकल स्टडी में। तो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन, तो हमने जैसे भाई साहब हिस्ट्री लिख दी, ठीक है, कुछ राजाओं के बारे में, लेकिन उस टाइम पे वुमेन का लाइफ कैसा था ऐसा पहले होता ही नहीं था हिस्ट्री में। वुमेन के लाइफ पे कोई लाइट ही नहीं था, मतलब नथिंग वाज डिस्कस्ड अबाउट द लाइव्स ऑफ वुमेन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी इमर्ज हुआ। फ्रेंच स्कॉलर सिमोन डे बेवर, ठीक है, एस्टैब्लिश द फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म थ्रू हर राइटिंग्स, ठीक है, ये नाम भाई साहब इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के फाउंडर माना जाता है इनको, ठीक है, सिमोन डे बेवर, ठीक है, शी वाज बेसिकली द वन हु एम्फसाइज्ड द रोल ऑफ फेमिनिज्म इन हिस्ट्री, ठीक है, ओके। It emphasized on the inclusion of women in history and on rethinking on the male-dominated perspective of the society. In the historical writings after 1990, women were portrayed as independent social class. तो 1990 के बाद जितना भी historical writings लिखे गए
तब जाकर हमने वुमेन को एक इंडिपेंडेंट क्लास समझा। इसके पहले एक इंडिपेंडेंट क्लास समझा भी नहीं था, ठीक है, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था, ठीक है। इसके बाद 1990 के बाद जितनी बार भी हमने हिस्ट्री को लिखा है उतनी बार हमने वुमेन को अलग तरीके से पोर्ट्रे किया है। हिस्ट्री में वुमेन को अलग तरीके से पोर्ट्रे किया है, मतलब हर बार जितनी भी बार हमने हिस्ट्री को लिखने का अटेम्प्ट किया है 1990 के बाद, उतनी बार वुमेन का रोल क्या था उस सोसाइटी में, उन लोगों का एजुकेशन कैसा था, उन लोगों का फैमिली लाइफ कैसा था, क्या उन लोग भी काम पे जाते थे, अगर काम पे जाते थे तो क्या मेन के जैसा उनको भी पगार मिलता था, ये सारी चीजें डिस्कस होने लगी, ये सारी चीजें लिखनी जाने लगी, ठीक है। ओके, माइकल फॉकल्ट, ठीक है, ही रिजेक्टेड द प्रैक्टिस ऑफ अरेंजिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल। ये पहले इंसान थे जिन्होंने बोला कि भाई साहब हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखने की जरूरत भी नहीं है, देयर इज नो नीड टू राइट इट इन डेट्स, डेट्स के हिसाब से हिस्ट्री को लिखने की जरूरत नहीं है। He explained that archaeology does not intend to reach the ultimate historical truth, but attempts to explain various transitions in the past, ठीक है। तो भाई साहब ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मतलब एक ऐसा लाइफ था जिसे समझ लो पहले मोनार्कियल रूल था, मतलब किंग का रूल था, फिर भाई साहब मोनार्कियल रूल से हम किस में आए, डेमोक्रेसी में आए। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ है ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ डेट्स जानना, ठीक है। एक टाइम था जब बहुत ज्यादा एम्फेसिस डेट्स पे था, इन्होंने बोला भाई साहब डेट्स को छोड़ो, अंडरस्टैंड द ट्रांजिशंस, एक फेज से दूसरे फेज में हम गए हैं, क्यों गए हैं, कैसे गए हैं, और कौन लोग इन्वॉल्व थे इस फेज में जाने के लिए, और क्या हुआ इस फेज में जाने के बाद, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, rather than just studying history from the perspective of dates, ठीक है। He explained archaeology does not but attempts to explain various transitions in the past। ट्रांजिशन मतलब एक फेज से दूसरे फेज, ठीक है। ओके, Foucault called this method the archaeology of knowledge। Okay, dash historiography means the restructuring of history from the perspective of women, feminist, nationalistic, antithesis, colonial। तो इसको फेमिनिस्ट बोलेंगे, ठीक है। किसने स्टार्ट किया था ये, सिमोन डी बिवेर, ठीक है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड इज रिच। इसीलिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम बुक्स पढ़ रहे थे अभी, ठीक है, जो जो नाम के बुक्स लिखे थे इस पे क्वेश्चंस बनता है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। किस किस हिस्टोरियन ने कौन कौन सी बुक लिखी है जिसने हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव या हिस्टोरियोग्राफी का पर्सपेक्टिव चेंज किया है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ओके, डिस्कोर्स ऑन द मेथड, सिमोन डी बिवेर, ठीक है। गिव द नेम ऑफ द मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री बेस्ड ऑन ऑपोजिट्स एज प्रेजेंटेड। क्या था भाई साहब, डायलेक्टिक्स, ठीक है, डायलेक्टिक्स वाज द मेथड। ओके, Foucault called his method as the archaeology of knowledge, ठीक है। इनके लिए नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि डेट्स, इनके लिए क्रोनोलॉजी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट है। एक समाज की एक व्यवस्था से हम दूसरी व्यवस्था में कैसे जा रहे हैं, ये हमारे लिए जानना समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, आइडेंटिफाई द थियरी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हिस्ट्री वाज अबाउट लिविंग पीपल एंड नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, कार्ल मार्क्स क्लास थ्योरी, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स की क्लास थ्योरी से ही आता है। स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, लियोपोल्ड वॉन रैंके गेव इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री। तो इनका भाई साहब फॉल्स है, इमेजिनेटिव नरेशन को सबने नकारा है, ठीक है। इमेजिनेटिव नरेशन जहां भी रहेगा वहां पे हिस्ट्री को आप एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते एज अ मींस ऑफ एक्वायरिंग साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है, और अपडेटिंग योरसेल्फ। लियोपोल्ड वॉन रैंके क्रिटिसाइज इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री। अभी हम बोर्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स आए हुए हैं इस चैप्टर से। 2019 में आया हुआ है, 2022 में बोर्ड्स में आए हुए हैं। देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला जैसे बहुत जरूरी है कि जो जो बुक्स लिखे गए हैं ये हिस्टोरियंस, कुछ 5 या 6 हिस्टोरियंस हैं यहाँ पे, कार्ल मार्क्स हो गए, सिमोन डी बिवेर हो गए, इन सब के नाम और इनके लिखे हुए बुक्स को जानना जरूरी है। हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी एक किया और यहाँ पे भी देखो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग पेयर। कार्ल मार्क्स का क्या था, देखो दास कैपिटल था, ठीक है, दास कैपिटल था, तो दिस इज द रॉन्ग पेयर, ठीक है। कार्ल मार्क्स डिस्कोर्स ऑन द मेथड, राइट क्या होगा, दास कैपिटल, ठीक है। ओके, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनालिसिस स्कूल। एनालिसिस स्कूल कहाँ का था भाई साहब, फ्रेंच स्कूल था, ठीक है, 2020 में आ चुका है, 2 मार्क्स का। की पॉइंट्स इस पे आप लिखेंगे, देखो हर समय ना आंसर्स के की पॉइंट्स लिखो, अपने नोट्स को ऐसे बनाओ कि जो की पॉइंट्स, आप लोग कैसे नोट्स बनाते हो, नोट्स तो बनाते नहीं हो पहली बार, और बनाओगे भी तो भाई साहब भर भर के इतना लंबा लंबा। आप एग्जामिनेशन में कौन सी ऐसी 2-3 लाइंस लिख दें जिससे पूरा का पूरा कवर हो जाए, तो इस तरह से की पॉइंट्स होते हैं। इसका मतलब ये आंसर नहीं है इन फ्रांस 20th सेंचुरी। सो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे
ठीक है। एनालिस स्कूल वाज अ स्कूल ऑफ हिस्ट्री दैट स्टार्टेड इन फ्रांस अराउंड द 20th सेंचुरी। ये आपका स्टेटमेंट है, ये आपके की वर्ड्स हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फ्रेंच हिस्टोरियंस कंट्रीब्यूटेड टू दिस स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल और हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है। हिस्ट्री नॉट ओनली इंक्लूडेड पॉलिटिकल, सो अकॉर्डिंग टू देम हिस्ट्री वाज नॉट ओनली a set of political events, politics, diplomacy, wars, etc., but also it included the climate, the local people, the agriculture, trade and technology that was practiced at that point of time, ठीक है। ये सारी चीजें भी भाई साहब इसमें आती है, क्लियर है, ओके। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स विद रीजन। वोल्टेयर सेड टू बी फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। व्हाई इज वोल्टेयर सेड टू बी द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी? देखो बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2020 में आया है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2019 में आया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ है, ठीक है। जुलाई का सेशन मतलब अगर किसी ने फेल हो गया तो उसके लिए ये सेशन होता है, ठीक है, या इंप्रूवमेंट के लिए। तो आपके की पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे? देखो, हिस्टोरियोग्राफी बेस्ड ऑन सोशल ट्रेडिशंस, ट्रेड, इकोनॉमी एक्सेट्रा, गेव इंपॉर्टेंस टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, ग्रेटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है। ये आपके की पॉइंट्स हो गए। अभी आप इस पे बच्चा बनाएंगे। तो what was why? Because Voltaire said, or Voltaire believed that historiography was based on social traditions, trade, economy, etc. Okay, he gave importance to not only wars, kings, or their border margins, but also to all aspects of human life. Okay, greatly contributed to historiography. Explain the statements with reason. Foucault called his method the archaeology of knowledge. Why? Because for him, ट्रांजिशन ऑफ इवेंट्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्चुअल क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, ठीक है। ट्रांजिशन इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। की पॉइंट्स रिलेटेड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो इन्होंने बोला क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हिस्ट्री को समझने की जरूरत नहीं है, ट्रांजिशंस को समझो। नॉट इंटेंड टू रीच हिस्टोरिकल ट्रूथ बट टू एक्सप्लेन ट्रांजिशंस इन द पास्ट। एक फेज से समाज दूसरे फेज में क्यों गया, कैसे गया, किन लोगों की बदौलत गया और जाने के बाद क्या हुआ, ठीक है। दैट्स द वे इन विच हिस्ट्री शुड एक्चुअली बी स्टडीड according to Foucault, ठीक है, okay. Explain Karl Marx classes theory. History is about living people, not about abstract ideas. ये fundamental needs of people, it is about fundamental needs of people. ज्यादा करके लोगों को equal access नहीं मिलता है क्योंकि हमारे सोसाइटी जो है वो बटा हुआ है, ठीक है, on the basis of income. Not get equal access to division of society into classes. Human history comprise of the history of class struggle. According to Karl Marx, ह्यूमन हिस्ट्री क्लास स्ट्रगल की है, ठीक है। चाहे वो भाई साहब रिच और पुअर का क्लास स्ट्रगल हो, चाहे वो भाई साहब आपके समाज में मतलब अनपढ़ गवार का या शिक्षित का हो, ठीक है, या भाई साहब आपके हायर क्लास या लोअर क्लास के हो, हायर क्लास और लोअर क्लास इन टर्म्स ऑफ कास्ट, हायर कास्ट और लोअर कास्ट के लोगों का हो, या रेसिज्म ब्लैक और व्हाइट का हो, हमेशा क्लास स्ट्रगल ही रहा है। हिस्ट्री इज ऑलवेज अ स्टडी ऑफ क्लास स्ट्रगल अमंग्स द फेलो ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। ह्यूमन हिस्ट्री कंप्राइज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। he had written the book Das Kapital, which is the most studied book all over the world. It may be said that Dash was the founder of modern historiography. Voltaire, René Descartes, Leopold Ranke, Karl Marx. कौन हो जाएगा? Voltaire, ठीक है। तो Voltaire के हिसाब से history is just not a study of kings and their borders or whatever their ruling kingdoms. It is also a study of the life of common people, ठीक है। Identify and write the wrong pair. Karl Marx, England; Michael Foucault, France; Leopold von Ranke, Germany; Herodotus, Greece. Karl Marx, Germany. Karl Marx belong to Germany. क्या हुआ? यहाँ पे आंसर नहीं है। ओके, राइट शॉर्ट नोट्स। डायलेक्टिक्स क्या होती है भाई साहब? डायलेक्टिक्स द मेथड, ठीक है, ट्रू फॉल्स गुड बैड, इनके जनरली हम बैड को इग्नोर कर देते हैं, नहीं बैड भी जरूरी है, ठीक है। गुड बैड, ट्रू फॉल्स, राइट रॉन्ग भी जरूरी है। राइट को समझने के लिए रॉन्ग जरूरी है। जैसे किसी ब्लैक बोर्ड में आप लिख रहे हैं तो चौक से लिख रहे हैं, जैसे व्हाइट आपको तभी दिखेगा जब वो ब्लैक हो ना। अगर इसमें मैं व्हाइट कलर यूज करूं तो दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना भाई साहब, ठीक है। आई हैव टू यूज अ डिफरेंट कलर ऑल टुगेदर विच कैन बेसिकली कम आउट इन कॉन्ट्रास्ट विद द व्हाइट कलर, है ना। तो हमेशा कोई भी चीज को समझनी है तो दोनों पर्सपेक्टिव से, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पर्सपेक्टिव से उसको समझना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड डायलेक्ट्स, ठीक है। This is called dialects. The method of analyzing of history based on opposites.
जैसे ट्रू फॉल्स, गुड बैड, इस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। जनरली हिस्टोरियंस पहले क्या करते थे, फॉल्स या बैड को इग्नोर कर देते थे, ठीक है। बाय द जर्मन फिलोसोफर जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल, थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, ये सब होगा भाई साहब इनका, ठीक है। थीसिस, एंटीथेसिस मतलब आपका पहले तो लिखेंगे थीसिस, फिर गुड, फिर उसका बैड, ठीक है, फिर राइट, रॉन्ग, इस तरह का एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस, इन दोनों को मिलाकर होता है सिंथेसिस। तब जाकर आप प्रॉपर कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि एक्चुअली में जो घटना घटी थी वो सही थी या गलत, ठीक है। ओके, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स विद रीजन। 2022 का क्वेश्चन है, हिस्टोरिकल रिसर्च वाज ड्रिवन टू फोकस इन डेप्थ ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन्स लाइफ। पहले ये नहीं था, 1990 के बाद चालू हुआ, और सिमोन डे बेवर के बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन इस स्टेप में हैं, ठीक है। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, हिस्टोरिकल रिसर्च फोकस इन डेप्थ ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन्स लाइफ। वुमेन्स लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट्स पे हिस्टोरिकल रिसर्च चालू हो गया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। देखो डेफिनेशन, पहले तो क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ हिस्टोरिकल रिसोर्सेज एंड राइटिंग द हिस्टोरिकल नैरेटिव। पहले क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी है। आपको जो भी पुरातत्व चीजें मिली हैं उनका क्रिटिकल एग्जामिनेशन वाकई में वो सही है या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। डिसिप्लिन्स यूज्ड फॉर हिस्टोरियोग्राफी, तो आर्कियोलॉजी हो गई, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी हो गई, एपिग्राफी, एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, लिंग्विस्टिक्स हो गया, न्यूमिज्मेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ कॉइन्स, लिंग्विस्टिक्स हो गया वैसा भाषा, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी मतलब जो मैन्युस्क्रिप्ट्स आपको मिली हैं आज तक, ठीक है। आर्कियोलॉजी, आर्काइवल साइंस, जीनोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लिनेज, मतलब कौन से राजा का बेटा कौन हुआ, ऐसा करते करते पूरे फैमिली ट्री को, ठीक है। ओके, ट्रेडिशंस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, आपका एंशिएंट ट्रेडिशन में क्या क्या था, केव पेंटिंग्स था, स्टोरी टेलिंग था, ठीक है। लोग एक दूसरे को स्टोरीज बताते थे एक घटना के ऊपर, ठीक है। फिर क्या क्या था भाई साहब, सिंगिंग सॉन्ग्स, बैलेड्स हुआ करते थे, ठीक है, मतलब कविताएं होती थी, लोक गीत होते थे। इससे भाई साहब एंशिएंट ट्रेडिशन है, इससे भाई साहब हिस्ट्री नीचे उतरता था, ठीक है। मतलब जो कोई गीत गा रहा है, हो सकता है किसी राजा के बारे में गा रहा हो, उस राजा के बारे में उसको कोई नॉलेज ना हो और उसको कुछ मालूम भी ना हो, लेकिन क्योंकि ये हर एज में ये गीत गाया गया है तो इसीलिए हमको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, anthropocentric questions supported by reliable evidence, graph of mankind's journey etc, ये आपका भाई साहब मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है, ठीक है। दिस इज बेसिकली मॉडर्न। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरोपियन हिस्टोरियोग्राफी, यूरोपियन हिस्टोरियोग्राफी में भाई साहब क्या क्या था, स्टडिंग सोशल एंड हिस्टोरिकल ट्रूथ्स, ठीक है, बाय अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिफिक मेथड से भाई साहब समझना है किसको, सोशल और हिस्टोरिकल ट्रूथ्स को, मतलब कोई माइथोलॉजिकल मेथड से नहीं, भाई साहब भगवान ने ये किया था या इंसान और भगवान का क्या रिलेशनशिप है, इन सब चीजों से हिस्ट्री को नहीं समझना है। हिस्ट्री को समझना है साइंटिफिक मेथड से, प्रॉपर प्रूफ एविडेंस। अगर हमको किसी घटना की प्रूफ और एविडेंस बतौर मिलती है तो वो अपन उस पर हिस्टोरिकल नैरेटिव लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब और किसी पे नहीं ले सकते, मतलब समझ लो भगवान के साथ कोई घटना घटी रही होगी या आपके वेद पुराण या कहीं पे कोई घटना है, लेकिन उसको हम हिस्टोरिकल नैरेटिव में कंसीडर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट कंसीडर इट टू बी अ हिस्टोरिकल नैरेटिव until and unless there are substantial proofs for the same, ठीक है। Focused more on the objectivity in history and historiography। अभी एनालिस्ट स्कूल में क्या हुआ भाई साहब, it started in France। History was not only included political events, kings, great leaders, तो हिस्ट्री में सिर्फ इन लोगों का ही गाथा नहीं बल्कि कॉमन लोगों का, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, वॉर, but also considered climate, local people, agriculture, technology, trade, means of communication, social divisions, their collective psychology etc in the historical times। ये सब भी भाई साहब आपके लिए important हो गया। These also became important। Feminist historiography, it means restructuring of the history। तो आपका हिस्ट्री का restructuring हो गया, मतलब इसके पहले आपने वुमेन हैं समाज में, इसको इंक्लूड ही नहीं किया था, ठीक है। So after 1990 we realized that it's very important to understand history from the perspective of women as well, ठीक है। वुमेन का क्या कंट्रीब्यूशन है, इसके पहले ये जितने भी हिस्ट्री के अटेम्प्ट्स हुए हैं हिस्ट्री को समझने में, उसमें वुमेन को कंसिडरेशन नहीं दिया गया था, ठीक है। From the perspective of women, the French scholar Simone de Beauvoir established the fundamentals of feminism। इन्होंने पहली बार भाई साहब फेमिनिज्म की बातें की। अकॉर्डिंगली वुमेन वेर इंक्लूडेड इन हिस्ट्री, और वुमेन को इंक्लूड किया गया हिस्ट्री में, ठीक है। वुमेन का स्टडी एक पर्टिकुलर काल के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इफ यू want to have a 360 degree angle of a particular period of time in history,
you got to understand history from women's perspective as well. ठीक है. Emphasis was also laid on rethinking of the male dominated perspective of history. तो एक मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव क्या था उस पर भी एम्फेसिस लिए किया गया. ठीक है. एम्फेसिस वाज आल्सो लेड ऑन द रीथिंकिंग. मतलब हर समय हमने राजाओं की गाथाएं गाई हैं. ठीक है. आप ये नहीं देख रहे हैं कि भाई साहब समझ लो कोई राजा ए है, इसने राजा बी पे अटैक किया. ठीक है. इसके इतने सारे लोग थे भाई साहब जो मिलिट्री में थे और इतने सारे लोग मारे गए. इतने सारे जो लोग मारे गए, इनकी बीवियां तो विधवाएं हो गई ना, इनके फैमिली तो अनाथ हो गए ना. उसके बाद इनका भरण पोषण कैसे हुआ, इसको तो हम नज़रअंदाज कर जाते हैं, है ना. आप सोचो कोई भी लड़ाई में नई नई करके हज़ारों लोग मारे जाते हैं. ठीक है. उन हज़ारों लोगों की जो मौतें होती हैं, उनके बाद उनका फैमिली कैसे चलता है, किस सिस्टम पे चलता है, कौन उनके फैमिली को रन करता है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें तो हमने नज़रअंदाज ही कर दी. हाँ, उसने राजा थे, उन्होंने इतनी लड़ाइयाँ जीती, वाह, लेकिन उसके बाद क्या हुआ. ठीक है. ये जो बच्चे अनाथ हो गए या ये जो औरतें विधवा हो गई, इनका जीवन उसके बाद कैसे चला. ठीक है. दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच वी जनरली टेंड टू नेग्लेक्ट इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री. और इसी को इन्होंने पहले पर्सपेक्टिव में इंक्लूड किया. मतलब इसको फेमिनिस्ट हिस्ट्री बोलते हैं. दिस इज द वे इन विच शी रीस्ट्रक्चर्ड हिस्ट्री. ठीक है. क्योंकि इस एस्पेक्ट को अगर हम नज़रअंदाज कर देंगे तो पूरा का पूरा जनरेशन के मेन एस्पेक्ट को ही हम नज़रअंदाज कर रहे हैं. ठीक है. ओके. ओके. बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब आपके नेम ऑफ द बुक्स. देखो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं. ठीक है. आप देख रहे हो भाई साहब बार बार क्वेश्चंस आए हुए हैं. रेने डेस्कार्टेस. ठीक है. रेने डेस्कार्टेस इनका कब से कब था, 1596 से 1650 तक इनका जो नेम ऑफ द बुक था वो क्या था भाई साहब, डिस्कोर्स ऑन द मेथड. वोल्टायर, ठीक है, जिनका दूसरा नाम क्या था, फ्रैंकोइस मैरी ऑरेट. ठीक है. 1694 से 1778 फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. इनके बुक का कोई विश्लेषण नहीं दिया हुआ है. जॉर्ज विलियम फेडरिक हीगल. ठीक है. 1770 टू 1831. ठीक है. एनसाइक्लोपीडिया ऑफ philosophical sciences. This book is the collection of lectures and articles. ठीक है. Encyclopedia of Philosophical Sciences. Reason in History. ठीक है. Okay. Leopold von Ranke, The Theory and Practice of History and the Secret of World History. ठीक है. ये इन्होंने लिखा है भाई साहब. कार्ल मार्क्स 1818 to 1883. इन्होंने क्या लिखा था भाई साहब, दास कैपिटल. सिमोन डे बिवेर फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफर थे. इन्होंने भाई साहब फेमिनिज्म को इंक्लूड करने के लिए स्पेशल बोला गया. ठीक है. इन्होंने मतलब फेमिनिज्म शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री. माइकल फॉकल, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज. इन्होंने बोला भाई साहब हिस्ट्री इज नॉट अबाउट जस्ट क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स. इनफैक्ट हिस्ट्री को क्रोनोलॉजी के पर्सपेक्टिव से पढ़ना ही नहीं चाहिए. हिस्ट्री को ट्रांजिशन के हिसाब से पढ़ने, जानने और समझने की कोशिश करनी चाहिए. ठीक है. वी शुड बी स्टडिंग हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिशंस एंड नॉट जस्ट क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स. ठीक है. ओके. आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल? हम समझम भाई साहब. ओके. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम.